Hello students, welcome to IE. In this video, we are going to discuss a very important numerical on the body effect of the N-channel MOS. So let us see what is the numerical. So in this numerical, you can see consider a NMOS device. That means they have given us a N-channel MOS with the threshold voltage VTH is equals to 1 volt and phi f is equals to 0.37 volt. What is this phi f? Phi f is nothing but the Fermi level voltage. So determine the maximum value of gamma such that the shift in the threshold voltage between VSB equals to 0 and VSB equals to 10 volt is no more than 1.2 volt. बहुत ही ये कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गामा पैरामीटर जो मुझे ढूंढने बोला है, व्हाट इज दिस गामा पैरामीटर? गामा पैरामीटर एक्चुअली दिस इज अ फैब्रिकेशन पैरामीटर. सो दिस गामा इज जनरली अ फैब्रिकेशन पैरामीटर एंड इट इज रिटन बाय 2q ऑफ Na. उसके साथ आपका आएगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय ये रूट ओवर होंगे उसके साथ COX. So this is the value of gamma. This is the value of gamma. और ये गामा क्या है? गामा आपका एक फैब्रिकेशन पैरामीटर है. फैब्रिकेशन पैरामीटर. So now अब देख सकते हैं ये जो NMOS डिवाइस क्या है? NMOS. So डिवाइस अगर मेरा NMOS होगा, N चैनल MOS, तो इस N चैनल MOS के अंदर मेरा जो सबस्ट्रेट होंगे वो क्या होगा? मेरा जो सबस्ट्रेट होगा दैट विल बी सबस्ट्रेट, इट विल बी पी टाइप. सो पी टाइप के अंदर जो डोपिंग होंगे वो आपका Na होगा, मतलब एक्सेप्टेड डोपिंग, इसीलिए यहाँ पे Na है. Q क्या है? Q is nothing but the electronic charge, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Epsilon is the permittivity. किसका permittivity? Permittivity of the semiconductor जो मेरा substrate है. So permittivity of this semiconductor. और COX क्या है? COX is nothing but the oxide capacitance. So COX is oxide capacitance per unit area. So we know that COX is nothing but epsilon OX डिवाइडेड बाई TOX पर यूनिट एरिया, इसीलिए यहाँ पे A नहीं है, तो एप्सिलॉन A बाई T होता. सो एप्सिलॉन OX इज द परमिटिविटी ऑफ द ऑक्साइड मटेरियल एंड TOX इज द थिकनेस ऑफ द ऑक्साइड लेयर. अब ये जो मेरा एग्जाम न्यूमेरिकल गिवन है, तो यहाँ पे मुझे गामा वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करना है such that the shift in the threshold voltage, that means we have to find the gamma such that the VTH value, जो VTH value यहाँ पे 1 volt given है, so this VTH value का shift होगा. क्यों होगा? क्योंकि मैंने VSB voltage को change किया. VSB is the voltage between the substrate and the body, और VSB voltage 0 से लेकर 10 volt में shift होता है. So that means if we change the VSB voltage from 0 to 10 volt, 10 volt पे शिफ्ट हो रहा है, तो मेरा थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो होंगे वो भी चेंज होगा. सो 0 वोल्टेज पे जो मेरा थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, लेट अस डिनोट इट एज VTH0, और जब मेरा VSB 10 वोल्ट है तो लेट अस से दैट इट इज VTH10. I am assuming this. So VTH0 is the threshold voltage when the substrate, when the source to body voltage is 0 voltage, and when the source to body voltage is 10 voltage, the VTH is 10 volt. VTH 10 है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे डिनोट किया इसको. Now ये जो चेंज हुआ थ्रेशोल्ड वोल्टेज में, क्यों चेंज हुआ? बिकॉज मैंने VSB वोल्टेज को चेंज किया. ये चेंज कितना होना चाहिए? नॉट मोर देन 1.2 वोल्ट, मतलब ये वाला चेंज आपका 1.2 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ऐसा मुझे एक गामा वैल्यू चाहिए. वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल. सो पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने देख रहा हूं कि मेरा जो
सोर्स टू बॉडी वोल्टेज है, दिस सोर्स बॉडी वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करके मेरा ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज चेंज हो रहा है। दैट मीन्स मेरा जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा मॉस का, दैट इज द VTH is a function of the VSB. That means you can see that the body voltage, source to body voltage is controlling the threshold voltage. Now, if I want to see the real picture, then you have to understand this real picture using a diagram. So that यहाँ पे कौन सा MOSFET है? यहाँ पे N channel MOSFET है. So let us draw a N channel MOSFET. So for an N channel MOSFET, we know that the substrate terminal जो होता है, substrate terminal और the body terminal, यहाँ पे this is the substrate. So ये substrate क्या होना चाहिए? NMOS के लिए, ये NMOS के लिए मेरा substrate होना चाहिए P type substrate. P type substrate होना चाहिए because we want to draw a NMOS. So NMOS के अंदर मेरा क्या होगा कि यहाँ पे मुझे एक डोपिंग करना होगा. सो यहाँ पे मैंने एक डोपिंग किया. सो दिस डोपिंग विल बी आपका यहाँ पे N+ होगा क्योंकि ये P सबस्ट्रेट है, हाईली डोप्ड N+ रीजन. सिमिलरली यहाँ पे भी एक डोपिंग होना चाहिए, डोपिंग रीजन, इसका क्या होगा N+. इसके ऊपर मेरा एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर होंगे, यहाँ के इसके ऊपर एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर ऐसा, और इसके बीच में एक गैप होगा. इस तरीके का. सो दिस इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मैं इसको डैश कर देता हूं. सो दिस इज द ऑक्साइड लेयर, यू कैन सी दिस इज द ऑक्साइड लेयर. सो व्हाट इज दिस? इट इज नथिंग बट SiO2. सपोज सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर है, इसके ऊपर मुझे एक मेटल का लेयर डालना है. सो इसके ऊपर मुझे एक मेटल का लेयर है. सो दिस इज द मेटल लेयर. यहां पे भी एक मेटल लेयर आएगा. सो दिस इज द मेटल लेयर. यहां पे भी एक मेटल कनेक्शन होंगे. सो दिस इज द मेटल कनेक्शन, और इससे मुझे एक टर्मिनल आएंगे, इसमें एक टर्मिनल, इसमें एक टर्मिनल, और एक टर्मिनल यहां पे होगा मेटल का. दिस इज द मेटल लेयर, और यहां पे मेरा बॉडी टर्मिनल. सो नाउ यू कैन सी ये जो टर्मिनल है ये मेरा गेट टर्मिनल. ओके, दिस इज द ड्रेन टर्मिनल, दिस इज द सोर्स टर्मिनल, एंड दिस इज द बॉडी टर्मिनल. ओके, नाउ मुझे NMOS को ऑपरेट करने के लिए अभी देखो यहां पे जो गेट वोल्टेज होता है, द मिनिमम गेट वोल्टेज दैट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ इन्वर्शन लेयर, यहां पे एक इन्वर्शन लेयर क्रिएट होता है. सो टू फॉर्म द इन्वर्शन लेयर, जो मिनिमम वोल्टेज मेरा चाहिए गेट में, उसी को हम लोग थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं. अब जब मेरा VSB, दैट मीन्स VSB यहां से लेकर यहां तक VSB. सो दिस VSB वोल्टेज जनरली, ये बॉडी को जनरली क्या किया जाता है? बॉडी को जनरली ग्राउंड किया जाता है. मतलब ये दोनों को शॉर्ट करके मुझे जनरली, नॉर्मली की बात बोल रहा हूं कि नॉर्मल कंडीशन पे इसको ग्राउंड किया जाता है. दैट मीन्स आपका अभी क्या है कि VSB वोल्टेज 0 है. सो VSB वोल्टेज को जनरली 0 रखा जाता है, और मैं ना यहां पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज आता है. सो जब मेरा VSB 0 होता है तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज का वैल्यू क्या है? VTH 0. So when the VSB voltage is VTH, so VTH will be VTH 0. Now मैंने क्या किया कि VSB 0 से मैंने VSB को 10 वोल्ट डाला. So that means यहाँ पे मैंने 10 वोल्ट अप्लाई किया. So now मेरा जो VSB है, ये VSB मेरा 10 वोल्ट है, और लेट अस एज्यूम अभी मेरा जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो VTH सफिक्स 10 है. सो यू कैन सी दैट ये जो बॉडी है, ये मेरा बॉडी है और सबस्ट्रेट. तो इस बॉडी का जो मेरा वोल्टेज है, दैट इज डिटरमाइनिंग द गेट वोल्टेज, जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है. सो थ्रेशोल्ड वोल्टेज मेरा बॉडी वोल्टेज के ऊपर डिपेंड होता है, और इसी को बोलते हैं मेरा बॉडी इफेक्ट. So what is this? This is nothing but the body effect, where the voltage of the body is controlling the value
of the threshold voltage. So we can change the threshold voltage value by applying some potential at the body. So in this case, what we can see that small variation in the body voltage will give a small variation in the threshold voltage, and this is nothing but called the body effect, which is very very important for the any कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जहां पे बॉडी इफेक्ट के ऊपर आपका क्वेश्चन हो सकता है. सो पहले आपको बॉडी इफेक्ट समझना होता है, तो आपको बॉडी इफेक्ट यहां पे एक्सप्लेन किया गया. सो बॉडी इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि बॉडी इफेक्ट का मतलब है कि जो मेरा मॉस है उस मॉस में जो बॉडी है और सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट का जो पोटेंशियल होगा, दैट पोटेंशियल कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द वैल्यू ऑफ द थ्रेशोल्ड वोल्टेज. That is called the body effect. So यहां पे मैंने देखा जब मेरा VSB वैल्यू मतलब बॉडी वोल्टेज 0 वोल्टेज था, तो मेरा थ्रेशोल्ड वोल्टेज का सिग्निफाई मैंने किया था VT 0 से. जब मेरा VSB वोल्टेज 10 वोल्टेज पे चेंज हुआ तो मैंने सिग्निफाई किया कि मेरा थ्रेशोल्ड वोल्टेज 10 वोल्ट है ड्यू टू द बॉडी इफेक्ट. अब मुझे क्या ढूंढना है कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि मेरा जो ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज का चेंज हुआ है, दिस थ्रेशोल्ड वोल्टेज चेंज शुड नॉट बी मोर देन 1.2 वोल्ट. शुड नॉट बी मोर देन मतलब लेस देन इक्वल्स टू 1.2 वोल्ट होना चाहिए. तो उसके लिए मेरा ये गामा वैल्यू क्या होगा. नाउ इफ यू रिमेंबर देयर वाज अ इक्वेशन ऑफ बॉडी वोल्टेज. बॉडी इफेक्ट का एक इक्वेशन था. इक्वेशन कैसा था कि द थ्रेशोल्ड वोल्टेज VTH, this VTH is equals to VTH 0. What is this VTH 0? VTH 0 is the threshold voltage when the VSB value is 0. That is, इसके साथ होगा मेरा एक गामा पैरामीटर, एंड इस गामा पैरामीटर के साथ आपका यहां का जो फर्मी लेवल पोटेंशियल है दैट इज 2πf. ये वाला इक्वेशन आया था. उसके साथ मेरा VSB रूट ओवर में आएंगे, उसके साथ मेरा माइनस ऑफ रूट ओवर 2πf ये वाला. सो दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन मैंने अभी लिखा है, दिस इक्वेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट जब आपको ये ढूंढना है कि दिस इज द डिपेंडेंस ऑफ द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑन द VSB वोल्टेज. देखिए VSB वोल्टेज के ऊपर मेरा थ्रेशोल्ड वोल्टेज डिपेंड हो रहा है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जिसको बहुत काम आने वाला है. और ये φf क्या है? φf इज द फर्मी लेवल पोटेंशियल जो मेरा यहां पे गिवन है. नाउ अब देखो, जब मेरा VSB 0 होगा, कंडीशन क्या है? जब मेरा VSB 0, सो व्हेन VSB वैल्यू इज 0 वोल्ट, तब मेरा थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है? तब मेरा थ्रेशोल्ड वोल्टेज VTH 0. So we can say that VTH 0 is equals to, अब थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होगा? VTH. VSB जब 0 होगा तो यहां पे 0 पुट करेंगे, तो मेरा थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होंगे? VTH is equals to VTH 0 according to this equation. just put VSB equals to 0. So यहां पे मेरा गामा, उसके साथ रूट ओवर 2πf और प्लस 0 बिकॉज VSB इज 0 माइनस रूट ओवर 2πf. अब ये 2πf के साथ ये 2πf कट आउट हो जाएंगे. सो अल्टीमेटली आपका वैल्यू आएगा VTH इक्वल्स टू VTH 0. इसीलिए मैंने बोला था कि जब मेरा सबस्ट्रेट टू बॉडी पोटेंशियल 0 वोल्ट में रहेगा तो मेरा थ्रेशोल्ड वोल्टेज VTH 0. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर. सो नाउ मेरा VSB वोल्टेज क्या है? नाउ द VSB जो वोल्टेज है, आप देखिए यहां पे चेंज किया गया है 10 वोल्ट पे. सो 10 वोल्ट पे मेरा अभी VSB वोल्टेज है. सो एट दिस कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, व्हाट विल बी द थ्रेशोल्ड वोल्टेज? सो थ्रेशोल्ड वोल्टेज आपका आएगा VTH 0 प्लस गामा रहेगा, उसके साथ रूट ओवर 2πf होंगे, प्लस आपका 10 वोल्ट होगा क्योंकि VSB आपने 10 वोल्ट डाला है यहां पे. सो उसके साथ मेरा माइनस 2πf होंगे.
So now this is the threshold voltage at VSB equals to 0. This is the threshold voltage at VSB equals to 0 volt. Now ये दोनों में जो सबस्ट्रक्शन होगा वो क्या होना चाहिए? डिफरेंस आपका लेस देन इक्वल्स टू 1.2 वोल्ट. सो नाउ लेट अस सी हाउ टू फाइंड दिस गामा वैल्यू सच दैट ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज का चेंज हुआ है वो मेरा लेस देन 1.2 वोल्ट है. So if you want to see the solution and if you want to see more examples like this, then please subscribe the channel and press the bell icon so that you will get the notification when the new videos will be uploaded. So far what we have done? So far we have found the VTH, that is the threshold voltage value or equation for VSB equals to 10 volt, and we have found the threshold voltage value for VSB equals to 0 volt. So ये दोनों VTH के अंदर जो difference होगा, so that means we can say that the VTH for 10 volt minus the VTH for 0 volt, ये value क्या होना चाहिए? This value should be less than equals to 1.2 volt. So we can write this equation, क्या होगा? ये वाला इक्वेशन लिखेंगे. सो VTH वैल्यू क्या है? ये वाला वैल्यू VTH फॉर 10 वोल्ट. सो VTH 0 प्लस गामा उसके साथ रूट ओवर 2πf प्लस 10 माइनस रूट ओवर 2πf. ये वाला VTH एट 10 वोल्ट पे है. नाउ VTH एट 0 वोल्ट पे क्या होगा? VTH 0 ओनली. सो यहां पे लिख दीजिए VTH 0. सो दिस VTH 0 विल कैंसिल आउट, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो कैंसिल आउट होके आपके पास आएगा वैल्यू इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2πf प्लस 10, और यहां पे क्या आया? और एक गामा रहेंगे यहां पे गामा, उसके साथ माइनस रूट ओवर 2πf, ये वाला वैल्यू. अब देखो मेरा जो ये वैल्यू है दैट शुड बी, ये जो वैल्यू होंगे दिस शुड बी मेरा 1.2 वोल्ट जो है ये 1.2 वोल्ट से छोटा होना चाहिए और इक्वल्स टू नॉट मोर देन. सो दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस वैल्यू विल बी लेस देन इक्वल्स टू 1.2 वोल्ट. ये 1.2 वोल्ट से छोटा और इक्वल्स टू होना चाहिए. सो नाउ लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ 5f का वैल्यू गिवन है. सो इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ 5f, सो इट विल कम आउट टू बी लाइक दिस. तो यहां पे गामा रूट ओवर 2 इंटू 5f का वैल्यू क्या है? 0.37. सो 0.37 प्लस 10 वोल्ट यहां पे, माइनस यहां पे 2 इंटू 0.37 लेस देन इक्वल्स टू 1.2 वोल्ट. सो नाउ इसको मल्टीप्लाई कीजिए और 10 के साथ ऐड कीजिए. सो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो यहां पे आएंगे, सो गामा, इफ कैलकुलेटर निकालिए और इसको सॉल्यूट कीजिए ये वाला को. इसको सॉल्यूशन करने के बाद आपका आएगा 10.74 माइनस यहां पे 2 इंटू 0.37. 2 into 0.37 is nothing but 0.74, which will be less than equals to 1.2. Okay, this will be equals to 0.2. So अब कैलकुलेटर में रूट ओवर ऑफ 10.74 माइनस रूट ओवर ऑफ 0.74 कीजिए. तो उसके बाद आप करने के बाद आपका फाइनल यहाँ पे क्या आएंगे? यू विल गेट अ वैल्यू, इसका वैल्यू आएगा, ये का जो वैल्यू होंगे दैट विल बी 0.8. यहाँ पे आएंगे, मैं पहले से कैलकुलेट करके रखा हूं तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, आप कैलकुलेट कीजिए. सो रूट ओवर ऑफ 10.74 माइनस रूट ओवर ऑफ 0.74 विल गिव अस 0.86023 which will be less than equals to 1.2. अब आपके पास ये वाला इक्वेशन है. सो दैट मीन्स आपका जो गामा वैल्यू होगा दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू, यहां पे देखिए 1.2 divided by 0.86023. This is the value of the gamma. So if you कैलकुलेटर पे यहाँ पे
पुट कीजिए कैलकुलेटर में। पुट करने के बाद आपका जो गामा वैल्यू का फाइनल लेस देन इक्वल्स टू आंसर आएंगे, दैट विल बी 1.394975। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड गामा। अब देखो क्या बोला था, डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गामा। अब मैंने देखा कि गामा वैल्यू मेरा 1.394975 से छोटा होगा और इक्वल्स टू होंगे। सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू? सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गामा कैन बी रिटन एज 1.394975। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गामा, जिसके लिए मेरा थ्रेशोल्ड वोल्टेज का चेंज कितना होगा, 0.2 वोल्ट से छोटा होगा, जिसका मेरा सोर्स टू बेस पोटेंशियल 0 वोल्ट से सोर्स टू बेस पोटेंशियल 10 वोल्ट में चेंज होंगे। सो यू कैन सी देयर इज सो मच कॉन्सेप्ट इन दिस अंडरस्टैंडिंग। आपको सिर्फ एग्जामिनेशन पे ये वाला इक्वेशन चाहिए, मगर मैंने जो कॉन्सेप्ट बोला कि बॉडी इफेक्ट का कॉन्सेप्ट, उस बॉडी इफेक्ट का कॉन्सेप्ट भी चाहिए। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल, and thank you for watching the video.